but there is a strategy, there is an approach which we are going to follow. So now coming to the random variable and its probability distribution. So that is our topic for today. Just the basic introduction for the random variable, and you will be surprised to notice that this is the thing which you are doing since class 10th or even ninth. So 9th, 10th, 11th, most of the concepts of your probability, they are again going to be used, but they will be reshaped and reframed in a some better manner. If I talk about the definition, it may seems to be quite difficult to understand. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. So now domain is a sample space. अब ये टर्म एक ऐसी है जो एक फंक्शंस के साथ रिलेट कर रहा है, which may be initially difficult to understand. And to make the situation little bit simpler, I am directly considering one simple example. So please focus on this example. Consider the experiment of tossing a coin 2 times. ठीक है? So 2 times a coin is tossed. So we know the sample space would be this: HH, HT, TH, and TT. If X denotes the number of heads obtained, X denotes number of heads obtained. So in this case, we say X represents the random variable. Now, what all values you think X can take? How many head can be there? We can observe from the sample space itself. There can be 2 heads. There can be 1 head. There can be 0 head. Or in a better way, we will prefer to write it from 0, 1, and 2. So X here becomes a random variable which is choosing the values 0, 1, and 2. Now, what is the purpose of this? That will be very clear soon. So initially, we will learn what exactly is X in my question and what all values it can take. Check out this question and identify X, what all values it can take. You have 5 red balls and 2 black balls in a bag. 2 balls are drawn at random. तो मैं इसको generally N से denote कर देता हूँ. 2 balls है. X क्या represent कर रहा है? X represent number of black balls. तो X is number of black balls. What are the possible values of X? So लॉजिकली सोचिए, आपके पास 2 ब्लैक बॉल थी और X क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. तो 2 बॉल्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो X ऑफ कोर्स एक भी रेड ब्लैक बॉल नहीं है, एक ब्लैक बॉल आ जाए या 2 ब्लैक बॉल आ जाए, एंड दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द होल सैंपल स्पेस. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है टोटल मिलाकर. या तो एक भी ब्लैक नहीं आएंगी, या एक ब्लैक आ जाएगी, या 2 ब्लैक बॉल आ जाएंगी. मैं आपके पास 2 बॉल्स को ही ड्रॉ किया गया था. सो X represents a sample space here which takes the value 0, 1 and 2. But that is not always that X will be 0, 1, 2. It may give a wrong impression. पिछले क्वेश्चन को देखूं, उसका आंसर और इसका, so they may also vary. Second thing, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है इन द सिचुएशन कि X will always start with 0. In most of the questions which we are taking in our syllabus, वहां पर ठीक है वो X जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, but even it may start with some another value. Also, X can be negative as well.
तो x की वैल्यू -1 हो सकती है, x की वैल्यू -3/2 भी हो सकती है, बट वो किस तरह की सिचुएशंस हैं, दे विल फॉलो सून. प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग. X represent difference between the number of heads and the number of tails obtained. X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, difference between number of heads and tails. कब, when a coin is tossed 6 times. फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है, बट अगर मैं यहां केसेस की बात करूं तो आपको पता है 2⁶, विच इज 64. सो 64 आपके पास केसेस होंगे इन द सैंपल स्पेस, बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू लिस्ट देम ऑल, वी विल अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. तो कह रहे हैं कि कॉइन को 6 टाइम टॉस करा गया तो व्हाट ऑल वैल्यूज एक्स कैन टेक. हम यहां सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हेड्स कितने आ सकते हैं एंड टेल्स कितने आ सकते हैं, और फिर हम उनके डिफरेंस की बात कर लेंगे. चलिए, तो हेड, लॉजिकली सोचिए, अगर एक भी हेड नहीं आया, यही होगा ना, या एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब ऑल टेल्स. अगर एक हेड आ गया, 6 टाइम टॉस करा था, एक हेड आया, तो ऑफ कोर्स 5 रिमेनिंग वुड बी टेल्स. 2 heads, 4 tails. 3 heads, 3 tails. 4, 5 and this would be 6. और इधर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 2, 3, और एक सॉरी सॉरी कुछ गलत कर दिया, 3, 2, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 0. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट देयर डिफरेंस, तो चेक करिए 0 और 6, इनका जब हम डिफरेंस कहेंगे तो दैट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विच वी नीड टू टेक. इन दोनों का डिफरेंस 4 हो गया, 2 हो गया, 0, 2, 4 एंड 6. तो डिफरेंस को ही तो रैंडम वेरिएबल कहा था. तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x या तो ऐसे लिख दो बिलोंग्स टू, अगर ऐसे सेट की फॉर्म में मैंने कर दिया है तो 0, 2, 4 एंड 6, और आप सीधा लिख दो कि x हो सकता है 0, 2, 4, 6. रिपीटेड को हम एक ही बार लिखेंगे. इन केस अगर कोई भी डाउट है इसको समझने में तो प्लीज डू लेट मी नो. स्टार्टिंग तो अभी सिर्फ ये 1 मार्कर सिचुएशन है आपका, कि सिर्फ x पता चल जाए कि वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. जनरली बोर्ड इससे तो अवॉइड करेगा, बट इसी से बन के अब 2 मार्कर और इवन 3 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी हम स्टार्ट करेंगे. अभी भी x की ही बात हो रही है, पढ़ के देखिए. चलो x वाला तो मैंने बता दिया है, एक ये वाला आप अपने आप होमवर्क में ट्राई करना. इसमें x निकालना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, इसलिए आई विल प्रेफर टू टेक दिस क्वेश्चन. A person plays a game of tossing a coin thrice. कॉइन को थ्राइस का मतलब 8 केसेस हो गए आपके सैंपल स्पेस में. तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एच 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 या टी 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 टी, और इनके आगे आपको पता है किस तरह से, एच 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 टी टी एच टी टी. फिर इनके आगे एम्बेडिंग कर दिया एच 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 टी टी एच एंड टी टी.
So that way you will have your sample space. There is a reason, यहाँ 8 केसेस ही हैं इसलिए मैंने चलो उनको लिख दिया. अब कंडीशन पढ़िए क्या कह रहे हैं. For each head he is given ₹2 by the organizer. हेड आएगा तो उसको ₹2 का गेन है, मिल रहे हैं, प्लस हो गया. और आगे क्या कहा है, अगर टेल आया he has to give ₹1.50. तो टेल आने पर उसको ₹1.5 का लॉस हो रहा है. अब x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट. तो अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट. show x is a random variable and exhibit it as a function. तो बेसिकली आपको x की वैल्यूज को बस बताना है, और अगर वो आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहा है वो आपका एक रैंडम वेरिएबल हो गया. सो चेक इट आउट. लॉजिकली जब हम यहाँ सोचना शुरू करेंगे, मैं एक केस अलग से बता देता हूं. जैसे ये HHH वाला था, तीनों हेड आ गए, तो ऑफ कोर्स इसमें उसको ₹2 का प्रॉफिट हुआ, इसमें भी ₹2, इसमें भी ₹2. तो उसको एक्चुअल में ₹6 मिल रहे हैं. तो अमाउंट गेन हो या लॉस हो वो एक्स है. अब मैं केस देखता हूं, ये वाला केस मैंने ले लिया. अब देखो जरा ये वाला केस, इसमें क्या होगा, 2 हेड है तो उसको ₹2 तो मिल गए, बट एक टेल आने में उसको इतना पैसा वापस करना पड़ गया. तो ये कितना हो गया, 4 में से इतना गया, ₹2.5. स्टिल उसको ₹2.5 का प्रॉफिट हुआ है. तो x 2.5 हो रहा है. नाउ थिंक लॉजिकली कि जो मैंने इस केस में करा है HHT सेम इसमें होने वाला है, क्योंकि 2 H आ रहे हैं और एक सेम इसमें होगा. इन तीनों केसेस के अंदर इसमें हो या इस केस की बात करूं या इस केस की, in all these cases he will be having a profit of ₹2.5. नेक्स्ट मैं लेता हूं सिंगल एच वाला. तो अब सिंगल एच का मतलब से HTT हो या ये वाला केस हो THT, या क्या हो, सिंगल एच में कौन सा है कि TTH. इन ऑल सच केसेस इट इज नाउ वेरी सिंपल. एक एच हेड आने पे ₹2 मिल गए और 2 टेल आए हैं, तो 2 टेल के ऊपर हर बार ₹1.5 का लॉस हुआ है. तो ये हो गया इफेक्टिवली लॉस ऑफ ₹1. तो लॉस ऑफ ₹1 जब मेरे पास आ गया तो वो -1 आ जाएगा एज x. फाइनली ये तो फिर पता ही है, TTT में सॉरी कितना था, -1.5. फिर अगली बार भी लॉस हुआ, फिर अगली बार भी लॉस हुआ. तो x कैन बी -4.5. This is the required answer, and this question actually explains जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि x जरूरी नहीं है कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन एक प्रॉपर पैटर्न और सीक्वेंस फॉलो करेगा. एंड सेकेंड थिंग, x इवन कैन बी नेगेटिव. वो दोनों चीजें इस एग्जांपल से क्लियर हो रही हैं. सो नेक्स्ट आपके पास आता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल that I will consider once I am done with the table, probability distribution table.
तो पहले ये चीज है, वो गलती से शायद स्लाइड मैंने बीच में लगा दिया, पहले ये देखना है। चेक इट आउट। अब ये आपका है 3 मार्कर क्वेश्चन, समझिए इसे ध्यान से, और 5 भी बन सकता है। 2 cards are drawn successively with replacement. See, this is important. With replacement की बात किया है, and 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability distribution of number of aces. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं इस एग्जांपल से। नंबर ऑफ एसिस की बात करी है ना, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एसिस, देन एक्स कैन बी, सोच के देखिए एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। अगर एक्स है नंबर ऑफ एसेस और आपने 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा है, 2 कार्ड इमेजिन करिए, जब आप ड्रॉ करेंगे एक भी एस नहीं आएगा, किसी भी एक केस में एस आ जाएगा, या both cards will turn out to be aces. So that are the only 3 values which x can take. अब इस केस में probability of x is equal to 0, फिर मैं p of x is equal to 1 और p of x is equal to 2 की बात करूंगा। Now what is the meaning of this notation जो मैंने अभी लिखा है, p of x is equal to 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा और 0 माने नॉन एस, तो 0 माने पहला वाला भी नॉन एस कार्ड आ जाए, दूसरा वाला कार्ड भी नॉन एस आ जाए। नॉन एस कार्ड्स कितने होते हैं, 48 बाय 52 हो गया। फिर दूसरा भी नॉन एस आ जाए, याद रखिए इट इज विद रिप्लेसमेंट, तो इसीलिए सेम कार्ड दोबारा आ सकता है। इसे साथ साथ सॉल्व कर लेना, ये कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 12/13 इंटू 12/13, 144/169। इसके आगे डेसिमल में बिल्कुल मत करने में लग जाना, ये आपको बस छोड़ देना है। फिर हम बात करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1 की। अब इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1, x क्या था, नंबर ऑफ एसेस, तो 1 एस, इसका मतलब एक एस आए तो दूसरा ऑफ कोर्स नॉन एस आ जाएगा। बट साथ में सोचिए पॉसिबिलिटी ये मत भूल जाना, पहला कार्ड आपका नॉन एस आ जाए और दूसरा एस आ जाता। सो दीज टू आर द डिफरेंट केसेस टू कंसिडर। एस, एस आना, एस 4 होते हैं और नॉन एस 48/52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। यहां क्या हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, नॉन एस एंड देन एस। तो इनफैक्ट पहली वाली टर्म का ट्वाइस ही तो हो रहा है, तो 2 टाइम्स 4/52 इंटू 48/52, ये कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13, which simplifies to 24/169। सो ये जो फाइनल आंसर्स आ रहे हैं ये वो है कि एस कलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 2 कार्ड्स ड्रॉ करने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो। यस ऑफ कोर्स, उसके लिए आ रहा है x इक्वल टू 1। आप इस नोटेशन का मतलब समझो ना, प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ऑब्टेन्ड। इसको जब मैं पढ़ूंगा तो इसका मतलब ये निकलेगा ना,
What is the probability of obtaining exactly one A's? ऊपर वाले को बोलूंगा तो ये क्या है? What is the probability of obtaining no A's? और फाइनली थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों के ऊपर एस आ जाता, एस एंड एस, क्योंकि दो कार्ड ड्रॉ करे थे, और एस कितने हैं? 4/52 कितना आ गया ये? विच इज 1/144। थिंक लॉजिकली, तीन ही पॉसिबिलिटी आएंगी, क्योंकि इन तीनों का जब आप यूनियन लेंगे दैट विल बी अ सैंपल स्पेस ओनली, क्योंकि इनके अलावा कोई और सॉरी 13 होगा, 13 होगा ना डिनोमिनेटर में तो। ओहो सॉरी, यस वो चलो, हाँ यहाँ 13 आएगा, यस, तो ये 169 हो गया। राइट। या दिस इज 169। जब ये सारे केसेस को लिख दिया, अब आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में पीडी कह देते हैं, वो क्या हो जाएगा? दैट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसे बहुत ध्यान से समझिए कि जो आपने अभी तक लिखा है, अब उसे आपको एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में करना है, लाइक दिस। तो मेरे केस में x क्या जा सकता था? 0, 1, 2, और p ऑफ x इक्वल टू 0, ये आंसर आया था 144/169, 24/169, 1/169। तो एज पर दिस क्वेश्चन ये मेरा आंसर आ चुका है। सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज समीशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज? सब 1 आएगा px का टोटल। नोट दिस केयरफुली, इन तीनों को जरा ऐड करके देख लो, इट शुड इक्वल टू 1। इन केस अगर नहीं आया, देयर इज सम कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेटिव मिस्टेक फॉर श्योर। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, राइट। तो तब चेकिंग के बाद वो करके नहीं दिखाना, वो आपके लिए है, दिखा दो तो चलो अच्छी बात है, बट अदरवाइज ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन में पीडी तक तो चलो मैंने, इन्होंने पूछा था बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मीन एंड द वेरिएंस। तो मान लीजिए आपकी टेबल लिखी गई है, उस केस में मीन ऑफ एक्स, जिसको म्यू से डिनोट करेंगे, और समटाइम्स ई ऑफ एक्स, तो ये सब नोटेशंस हैं, एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला summation of x into px. I will use a very simple notation. I equal to 1 to n की जरूरत नहीं है लिखने की। Summation x into px, that will be the mean। और मीन का एक और नाम होता है, अगर आपने नोटिस करा हो, लिखा हुआ है यहां, that is the expected value of x। आई रिकॉल फ्यू इयर्स बैक जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया, तो पेपर सेटर ने जानबूझ के मीन टर्म को यूज नहीं करा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के बताओ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड एंड दे कुड नॉट अटेम्प्ट दिस, जबकि उनको पता था कि भाई मीन निकालने का मतलब और कैसे उसे करते हैं। तो ये सिनोनियम है, ये पता होना चाहिए। तो अब इस केस में मैं सेकेंड पार्ट ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। सो क्या वो कह रहा हूं? ऑल्सो फाइंड इट्स मीन, इट्स वेरियंस एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये टर्म्स आप सभी ने ऑलरेडी की हुई हैं।
मैथमेटिकली इनका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला और उससे उन वैल्यूज को निकालना है। दो यूजिंग वन क्वेश्चन एटलीस्ट आई विल बी डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन, कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। बट अदरवाइज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के जस्ट फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझने हैं। फॉर मीन मीन के लिए मैंने क्या क्या नोटेशंस बताई हैं, म्यू और ई ऑफ एक्स, और ये क्या होता है, समीशन एक्स इंटू पी एक्स। लुक एट दिस, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू पी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू पी एक्स, ये एक्स है ये पी एक्स है, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 0 इंटू 144/169 प्लस, फिर इन दोनों को करा 1 इंटू 24/169 प्लस 2 इंटू 1/169, दिस इज 26/169 and which is 2/13। ये लोएस्ट में करना मत भूल जाना, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, क्योंकि आगे मुझे वेरिएंस भी निकालना है। चेक कर लीजिए 2/13 आ गया। अब इसे डेसिमल में बिल्कुल नहीं करना है। फॉर वेरिएंस, वेरिएंस को हम नोटेशन क्या देते हैं, वेर और ऐसे एक्स लिख देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस में मीन का होल स्क्वायर। वो यहां पर बताया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर पी आई, राइट, माइनस में म्यू का स्क्वायर, और म्यू क्या था, हमारा मीन था, तो इसलिए मैंने सिंपलर फॉर्म में लिख दिया है। नाउ वेरिएंस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो चेक करिए ये कैसे निकालेंगे हम, सिर्फ मुझे पहली टर्म निकालनी है, क्योंकि मीन तो मैं ऊपर निकाल ही चुका हूं। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ध्यान से सोचो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, आ जाओ टेबल में और देखना शुरू करो। एक्स स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर इंटू 144/169, लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, बट पेपर में दिखा जरूर दो। सेकेंड टर्म भी अनअफेक्टेड रहने वाली है, फर्क पड़ेगा नेक्स्ट, क्योंकि यहां अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/169 माइनस में मीन का होल स्क्वायर, एंड दिस सिंप्लीफाइज टू 28/169 minus 4/169, which is 24/169। और फाइनली फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली सिर्फ सिग्मा होता है, विच इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो रूट ऑफ 24/13, तो अप्रोक्सीमेटली है ये 5/13 कुछ आ रहा है। ये मैं सजेस्ट करता हूं पेपर का सारा अटेम्प्ट कर लो, 2 लाइन छोड़ दीजिए, टाइम अगर है तो आप इसको थोड़ा आगे, रूट 24 आपको पता है कि ये आपका 4.97 समथिंग कुछ आने वाला है, तब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दीजिए। अदरवाइज जनरली आंसर में आपके मार्क्स यहां डिडक्ट नहीं कर रहे कोई भी एग्जामिनर।
बट स्टिल इट इज हाईली रिकमेंडेड कि इसे तो कम से कम आप डेसिमल में दिखा दीजिए कन्वर्ट कर। So I hope this idea is clear. एक बार चैट बॉक्स में मुझे पता चल जाए। ओके तनिष्क, तन्मय गर्ग, ओके प्रणव, तनिष्क गर्ग, ओके परिधि, लक्ष्य वर्मा, अग्रिम, शुभांगी, सुनिधि, कार्तिक, संजना, हिमांशी आहूजा, नमन वर्मा, हिमांशी भास्कर, हर्षप्रीत, जयादित्य, ओके केशव, क्रिश, वेयर आर यू? सचित, ठीक है, प्रणव, वेयर आर यू? ओके ठीक है केशव, ओके राइट, अच्छा ठीक है प्रणव। सो आई होप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश करने वाला हूं वो आप अभी अपने आप करके मुझे बताएंगे। आई विल बी वेटिंग इनफैक्ट फॉर 3-4 मिनट्स। सिर्फ फर्क क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, और माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज two cards are drawn simultaneously without replacement. तो that is the difference. बाकी सिचुएशन में देखो वही, फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। सो पिछले केस में क्या था, वो नंबर ऑफ एसेस, और इस केस में हो गया नंबर ऑफ किंग्स। सो इवन इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि 4 एसेस होते हैं और 4 ही किंग होते हैं। बट यस, विदाउट होने से अफेक्ट पड़ने वाला है, तो प्लीज चेक इट आउट। और याद रखिए, जब भी आपसे मीन वगैरह पूछ लिया जाए तो उसके लिए एक टेबल का होना जरूरी है इस तरह की। तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी रहेगी। फॉलो दी स्टेप्स जो इस पेज के ऊपर हैं एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं स्क्रीन चाहे पिछला लगा दूंगा ताकि आपको हिंट रहे कि किस तरह से आपको सोचना है और लिखना है। प्लीज नोट द क्वेश्चन। सर एक बार जो आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी चेक करवा देता। एन निकालने वाला था ना हाँ लास्ट टाइम, एन 5 था एक क्वेश्चन में, मुझे इतना याद है। चलो मैं देख के बता तो वो दूंगा। 2 क्वेश्चन थे, यस ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्लास के बाद। आई विल शेयर द आंसर्स। Meanwhile, everyone, please attempt this question.
तो क्वेश्चन नोट कर लिया, तो मैं ये स्क्रीन लगा रहा हूं सो दैट यू कैन हैव अ हिंट, बट प्लीज अटेम्प्ट नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे। तो ये तो क्लियर है, मुझे लगता है पहली जो 2 स्टेप्स आपने देखे होंगे ना, कि लेट एक्स रिप्रेजेंट्स, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ किंग्स, वो आइडेंटिफाई करा, और फिर क्लियरली व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक, एक 0 किंग आएगा या एक किंग या बोथ किंग्स। फिर हम बात करेंगे इसकी, और इसका मतलब क्या है, x0 का मतलब जब 2 कार्ड्स ड्रॉ करें तो दोनों ही नॉन किंग आ जाए, नॉन किंग कामा नॉन किंग। अब पहला कार्ड नॉन किंग आए, हाउ मेनी नॉन किंग्स कार्ड्स आर देयर, 48 बाय 52। अगला भी नॉन किंग आए, बट अब क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब 47 बाय 51 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इस केस में थोड़ी बढ़ने वाली है इफ आई कंपेयर विद द लास्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। सेम वे यू विल गो फॉर p of x is equal to 1 and p of x is equal to 2. So mark this now as a part of your homework. एक ही क्वेश्चन दिया है, बट प्लीज डू सबमिट दिस टू मी, करके देखिए इसे। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। और फिर अच्छा हाँ, ये चीज देख लो, इसमें क्या बनेगा, ये p ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, नॉन किंग, और फिर किंग आ जाए, नहीं तो फर्स्ट किंग आए दूसरा नॉन किंग आ जाए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी का डबल ही होगा ये, बट अलग अलग केसेस हैं विच यू नीड टू कंसीडर। सो अटेम्प्ट इन योर होमवर्क एंड शेयर योर आंसर। 2-3 स्टूडेंट्स के मैंने देखा, नॉर्मली मेरे पास जैसे क्लास खत्म हुई है 10 मिनट में चाहे 1-2 क्वेश्चंस हो, वो उनका आंसर आ जाता है। तो नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए एंडिंग द क्लास देन, इफ नो डाउट मैं अभी वो सॉल्यूशन भेज उनका ना आंसर बता देता हूँ, एन की वैल्यू मुझे चेक करना रहेगा। ओके चलिए, यू कैन लीव नाउ। यस प्लीज लीव द क्लास। कृष्ण, नव्या, सृष्टि,